Good morning, students. I'm Sumedha Mamgai. Today we are going to start first chapter of Political Science, class 10th, that is power sharing. Uh, Let us start chapter with very small examples of sharing in our daily life. In this clip, you can see two kids are sharing ice cream. In this another picture, you can see people are sharing pieces of cakes. What do you think? Why we share things? We share things. In this answer is in this clip. In this, you can see these two children are not sharing things. They are fighting for a toy. Look at their facial expressions. Are they looking happy? They are annoyed. They are crying. They are not. They do not seem happy. But in this the picture, you can see where they are sharing their toys. They are happy. They are playing. Very positivity is there. So sharing gives us pleasure. Sharing gives us satisfaction. Sharing gives everyone equality. By sharing, everyone can enjoy his or her rights. So in daily life we share so many things. In classroom, many times you share your tiffin with your friend. Sometime when you forget to bring your geometry box, you can use your friend's geometry box. So you can see that sharing gives us pleasure. But now, in this chapter, we will discuss not the simple sharing, but the power sharing. Power sharing in this chapter means when we share political power. Okay, in a country, when a country is ruled by only one person or one group, that is not sharing. But if power is shared by government, is run by different persons, different group of different backgrounds, it is called power sharing. Okay, it is a situation in which two people or groups share responsibility of running government, organization, etc. Okay, when power is in not one hand, power is shared by many. ओके, पावर शेयरिंग को हिंदी में हम सत्ता की साझेदारी भी कहते हैं. साझेदारी का मतलब जब हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिल के कैरी करते हैं, मिल के निभाते हैं, तो उसको हम साझेदारी कहते हैं. तो जब हम अपनी जो हमारी राजनीतिक शक्ति है, जो हमारी सरकार है, उसको मिल के चलाते हैं. अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग व्यक्तियों का समूह सत्ता को चलाता है, सरकार को चलाता है, सरकार की जिम्मेदारियों को निभाता है. इस स्थिति को हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं. Okay, now whether it is good or not, why should we do power sharing? All these things we can understand by some case studies. There is a country known as Belgium. It is in Europe. You can see here. It is a Belgium. The location of Belgium in Europe is here. Here it is Belgium. It is a very small country. Brussels is its capital. It is surrounded by France and Germany mainly. तो आप देखेंगे कि इन कंट्रीज़ का भी इस पे बहुत इन्फ्लुएंस रहा. और बेल्जियम जो था, इसमें इसका जो एथनिक कंपोजिशन था, इसकी जो यहाँ पे जो लोग रहते थे, वो मेनली यहाँ पे जो डिफरेंसेस थे लोगों की सोसाइटी में, वो थे लिंग्विस्टिक्स, भाषा के आधार पर. तो ये जो बेल्जियम है, इसमें कुछ लोग ऐसे थे, एक एरिया ऐसा था जहाँ पे लोग फ्रेंच स्पीकर्स थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. ओनली 1% पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम वॉज जर्मन स्पीकिंग, एंड बाकी लोग जो थे, फ्लैमिश एरिया में रहने वाले जो लोग थे, वो लोग डच लैंग्वेज बोलते थे. सेम वे जो इनकी कैपिटल ब्रुसेल्स थी, उसका एथनिक कंपोजिशन अलग था. फ्रेंच लोग जो यहाँ पे थे, दे वर रिच एंड पावरफुल.
ठीक है, कंपैरेटिवली टू डच एंड जर्मन्स। तो इस तरह से ये जो इनका एक एथनिक इनका स्ट्रक्चर था, इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, और इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। जो डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकर्स एंड जर्मन स्पीकिंग पर्सन्स थे, वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलजुल कर नहीं रहते थे। इनके बीच बीच में क्लैशेस होते रहते थे। ठीक है, किसी न किसी बात पे आपस में इनके झगड़े होते रहते थे, और कई बार वो झगड़े थोड़ा अगली फॉर्म भी ले लेते थे। अब हमेशा ही लगातार ये होता चला गया, तो गवर्नमेंट को लगा कि हम ऐसा क्या करें कि ऐसा कम हो। वहाँ के लोगों ने मिल के सोचा, नॉट ओनली द पर्सन्स हु वर इन द गवर्नमेंट बट अदर ऑल्सो, एंड they discussed, they debated, and finally they made amendment in Belgium constitution. 4 times Belgium's constitution was amended. ठीक है, 1970 में से ये शुरू हुआ और 1993 तक इसमें अमेंडमेंट हुए। 4 अमेंडमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हुए। एंड फाइनली व्हाट दे डिसाइडेड टू शेयर पावर। उन्होंने कहा कि कोई भी एक ही एथेनिक ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट नहीं चलाएगा, क्योंकि उनकी कंट्री में लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट थे। तो उन्होंने सोचा और बोला कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंट्री। एक ही कंट्री में ऐसे हम हमेशा झगड़ते हुए तो नहीं रह सकते ना। तो उन्होंने ये एक मॉडल उन्होंने अपना बनाया। इट इज़ वेरी फेमस एंड इट इज़ नोन एज द मॉडल ऑफ बेल्जियम। What they have decided equal number of ministers from Dutch and French speaking area in the central government. उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, एक उन्होंने जो उनके रीजनल टाइप गवर्नमेंट बनाई, और थर्ड उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। तो रीजनल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स का नंबर था वो डच और फ्रांस दोनों का इक्वल रहेगा। ठीक है, फिर उन्होंने बताया नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। व्हाट डज इट मीन कि कोई भी एक कम्युनिटी कोई भी एक डिसीजन अपने आप अकेले नहीं ले सकती। ठीक है, देन द थर्ड वन, द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट सबऑर्डिनेट द सेंटर गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट विल बी इंडिपेंडेंट। वो सेंटर गवर्नमेंट से रिलेशन में तो रहेगी, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको इंटरनल लिबर्टी देगी। ओके, बट दे हैव सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। कैपिटल की एक अलग से गवर्नमेंट है जिसमें फ्रेंच एंड डच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। एंड लास्ट उन्होंने देयर विल बी वन कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक एक उन्होंने सरकार बनाई, जिसमें दिस गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन, वेयर एवर दे लिव। व्हाट डज इट मीन कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनेगी, उसमें बेल्जियम के हर जगह रहने वाले, हर एरिया में रहने वाले लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें फिर ये नहीं होगा कि वो ब्रुसेल्स में रह रहे हैं या किस स्टेट में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहेंगे, वो अपने कम्युनिटी के लिए वोट दे सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस को भी मेंटेन रखा। उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप में जो लोग थे उनको भी इम्पोर्टेंस दी, उनको भी ये एक फीलिंग दी कि दे आर इम्पॉर्टेंट। और ये भी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड बातों को डील करेगी, ऐसा उनका मानना था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पावर शेयरिंग है, इससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो ये कि हम इट इज़ अ मॉरल रीज़न समझते हो ना, कि नैतिक कारण, कि वी बिलीव इन इक्वालिटी। इट इज़ पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो बेस है इट इज़ इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये डेमोक्रेसी का बेस है। इन दिस वाई वी शेयर पावर, बिकॉज वी बिलीव इन शेयरिंग। ओके, तो हम मानते हैं कि इट इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स वाई वी शेयर पावर। कि हम दिल से
सपोर्ट करते हैं इक्वालिटी एंड शेयरिंग का। जैसे घर में मान लो आप अपने भाई बहनों के साथ कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो आप इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आपको लगता है कि उनका भी उतना ही राइट है जितना आपका। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लास 10th में हो और आपकी छोटी बहन 2nd क्लास में हो या आपका भाई 3rd क्लास में हो, वो आपसे छोटा है। अगर आप चाहो तो उसको अपनी फ़िज़िकल और मेंटल पावर देके हो सकता है शेयरिंग ना करो, लेकिन आप मानते हैं कि उसका छोटा होना उसके शेयरिंग के राइट को कम नहीं करता, तो यू आर बिलीवर ऑफ दिस, दैट्स वाई यू शेयर पावर। ऐसे ही कंट्री में जब हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सोशल ग्रुप, चाहे वो कम नंबर में हो चाहे वो ज़्यादा नंबर में हो, इवन इफ़ इट इज़ इन माइनॉरिटी, ही हैज़ गॉट राइट टू बी इक्वल। अगर वो माइनॉरिटी में भी है, कम नंबर में भी है, तो भी उसको समानता का अधिकार है, उसको सत्ता में भागीदारी का उतना ही अधिकार है जितना कि मेजॉरिटी को है। तो तब हम इस कॉज को मॉरल कॉज कहते हैं। लेकिन कई बार ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम मॉरल कॉजेज़ से शेयरिंग नहीं करते। कई बार आप अपनी बहन से या अपने भाई से शेयरिंग इसलिए नहीं करते कि आप चाहते हैं शेयरिंग करना, लेकिन आप सोचते हैं कि इससे शेयरिंग करने में मेरा फ़ायदा है। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे क्या फ़ायदा क्या नुकसान। आप सोचोगे कि अगर मैं इससे शेयरिंग नहीं करूँगा तो ये मुझसे झगड़ा करने लगेगी, पापा मम्मी को मेरी शिकायत कर देगी, बेकार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होगी, तो इससे अच्छा ही है कि इसके साथ शेयर कर दो। यानी कि आप उस समय मॉरली शेयर नहीं करते, बट यू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन यू शेयर। दिस रीज़न कभी कभी कंट्री में भी बेटे ऐसे ही होता है कि हम उस बात से बहुत कन्विंस तो नहीं होते, बट वी शेयर पावर बिकॉज वी थिंक दैट पावर शेयरिंग इज़ बेनिफिशियल, इट इज़ गिविंग अस सब good things, some profit. That is called prudential reason. Prudential रीज़न का मतलब हिंदी में हम इसे बोलेंगे युक्ति परक कारक। यानी कि हम वी एनालाइज, वी कैलकुलेट लॉस एंड वी कैलकुलेट प्रॉफिट। हम सोचते हैं क्या फ़ायदा क्या नुकसान। फाइनली हम सोचते हैं कि पावर शेयरिंग से वी कैन इग्नोर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। हम सोचते हैं कि बाय गिविंग शेयर इन पावर देयर विल बी स्टेबिलिटी, सो कंट्री विल बी यूनाइट। तो हम इन सब फ़ायदों को देखते हुए हम पावर को शेयर करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। ये कई बार एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, या सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो आप बताएंगे कि पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल फ्रॉम these two reasons, whether the prudential or the moral or the both. ओके, तो फिर ये हमने लास्ट में देखा कि एक्चुअली शेयरिंग जो है, शेयरिंग एम्पैथी को बढ़ाता है, ट्रस्ट को बढ़ाता है। चाहे तो वो शेयरिंग दो बच्चों में हो, आपके क्लासरूम में हो, आपकी फैमिली में हो, या वो शेयरिंग पूरे कंट्री में हो, sharing gives us trust, empathy, unity and feeling of goodness. आज हम इतना ही करेंगे। वी विल कंटिन्यू चैप्टर। तब तक आप इसकी PDF एक बार पढ़िएगा, आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। एक एक लाइन को पढ़िए, जो आपने PPT में समझा उसको रिलेट करना सीखिए। देन आगे मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगी। थैंक यू, बाय।